हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर साडा 9th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1। सो जिसका क्वेश्चन है साडे कोल 8th। सो क्वेश्चन 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਡੈਸਟਲ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਇੱਕ 1.6 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਉਚਾਨ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਪੈਡੈਸਟਲ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਉਚਾਨ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਪੈਡੈਸਟਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਡੈਸਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੈਡੈਸਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਡੈਸਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਡੈਸਟਲ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਡੈਸਟਲ ਦਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਡੈਸਟਲ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ 1.6 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.6 ਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 1.6 ਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਉਚਾਨ ਕੋਣ, ਹੁਣ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਉਚਾਨ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਡੈਸਟਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਡੈਸਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਿਗਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਨ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 60 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੈਸਟਲ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਨ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 45 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪੈਡੈਸਟਲ ਦਾ ਸਿਖਰ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੈਡੈਸਟਲ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪੈਡੈਸਟਲ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 45 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੈ ਇੱਥੇ 45 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ A B C D। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗੀ 1.6 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ AC, ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੈਸਟਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੈਡੈਸਟਲ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ BD ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਪੈਡੈਸਟਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ। ਪੈਡੈਸਟਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ BD। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣੋ, ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਿੱਚ 2 ਥੀਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਮਕੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਡੈਸਟਲ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ BC ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ DBC ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ DBC ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DBC ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 45 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, 45 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਕੋਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ BC ਪੈਡੈਸਟਲ ਦੀ ਉਚਾਈ।
सो इनू पता करने के लिए असी की लिख देंगे हाँ, देखो इतों साडे को आ जाएगा कि बी सी ओवर असी लिख देंगे हाँ बी डी। ਹੁਣ देखो 90 डिग्री का कोण है, इसके ओपोजिट साइड हो गई एच, तो थीटा के ओपोजिट साइड को हो गया पी, तो ये रह गया साडे को बी। ਹੁਣ देखो असी उपर लिखा बी सी मतलब साडे को आ गया पी, और बी डी की है बी, इत्थे लिख लिया असी बी। ਹੁਣ पी ओवर बी की होंदा है साडे को टैन थीटा। क्लीयर। ਹੁਣ ਜਦੋਂ टैन थीटा होंदा है तो थीटा साडे को कितना दिता गया है, सो थीटा है जो साडे कोल वो है साडे को 45 डिग्री इस त्रिभुज दे विच। ठीक है। सो ये साडे को आ गया बी सी ओवर बी डी इज इक्वल टू टैन 45 डिग्री। ਹੁਣ बी सी ओवर बी डी की आ गया साडे को टैन 45 डिग्री कहते बराबर होंदा है 1 दे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफ टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होंदा है। तो यदा मतलब बी सी ए बी डी इधर गुणा हो जाएगा तो साडे को बी सी बराबर आ गया बी डी। यदा मतलब कि ये दोवें साडे को इक्को जिहियां आ गई, एक दूसरे के इक्वल टू आ गई ना, सेम आ गई। इनू मान लो इक्वेशन फर्स्ट। हुण ये तो हो गया। हुण असीं लिखती छोटी त्रिभुज, हुण असीं लवांगे अपनी वड्डी त्रिभुज। इत्थे लिखो हुण त्रिभुज ए बी डी विच कुछ भी ले लो, ए बी डी ले लो, डी बी ए ले लो, कुछ भी लिख लो। हुण इहदे विच देखो साडे कोल जो बन रही है इस तरह त्रिभुज बन रही है, ये साडा डी पॉइंट, ये साडा बी ते ये साडा ए पॉइंट, जिहदे विच साडे को ए 1.6 मीटर जिहड़ी मूर्ति दिती गई है। ठीक है, तो ये साडे को साइड नहीं है जो साडा पेडेस्टल है। ठीक है, सी इस दे विच आंदी है। सो असीं पता की करना सी पेडेस्टल। सो पेडेस्टल देखो किहड़ी साइड ते आंदा है, ए बी दी साइड ते। सो असीं पूरा लिखते हैं इत्थे ए बी ओवर बी डी। सो इस तरह इधर भी साडे को राइट एंगल, ये साडे को एच आ गई, ये साडे को पी आ गई, थीटा साडे को कितना है 60, तो ये आ गया साडा बी। सो ए बी ओवर बी डी आ गया साडे को, ये फिर साडे को बन गया पी ओवर बी। सो पी ओवर बी रेशो कहते इक्वल टू होंदी है टैन थीटा दी। हुण ए बी की है साडे को ए सी प्लस बी सी ओवर आ गया बी डी इज इक्वल टू टैन कितना है साडे को 60 डिग्री। क्लीयर। हुण टैन 60 की वैल्यू पुट करते हैं। उस तो पहले ए सी भी देख लो कितना है साडे को 1.6 प्लस आ गया बी सी ओवर आ गया बी डी, इधर आ गया टैन 60 कितना √3। इत्थे लिख लो बिकॉज ऑफ टैन 60 डिग्री साडे को कितना होंदा है √3 के बराबर, इसलिए इसकी वैल्यू असी जिहड़ी वो पुट करती है। तो 1.6 प्लस बी सी इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई हो गया इस साइड पर अपने सज्जे पासे, सो गया बी डी वर्गमूल 3, बी डी √3 आ गया साडे को। हुण देखो बी डी किहदे बराबर है बी सी दे। ठीक है, हुण असीं इत्थे लिखदे हां 1 तो। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो असीं गल करदे हां तो साडे को आ गया 1.6 प्लस बी सी, बी डी की जगह तो असीं की लिखता बी सी रूट आ गया 3, तो साडे को आ गया 1.6 इज इक्वल टू बी सी √3 माइनस कर देंगे असीं बी सी। ये वाला जो बी सी सी इस साइड पर जाके साडे को राइट साइड पर माइनस हो गया जो भी असीं ट्रांसपोजिशन करते हैं। सो 1.6 इज इक्वल टू बी सी आ गया कॉमन, तो साडे को रह गया √3 माइनस 1, ये रह गया साडे को। सो यह 1.6 साडे को, तो साडे को आ गया बी सी फाइंड करना असीं 1.6 ओवर आ जाएगा साडे को √3 माइनस 1, तो ये रह गया साडे को बी सी। क्लीयर। हुण जां तां साडे को यही आंसर साडा हो जाएगा, ये भी आंसर साडा सही मन्निया जाएगा, ये भी आंसर कोई गलत नहीं है साडा, नाल असीं मीटर लिख देना है। पर जेकर असीं पॉइंट नूं खत्म करना होवे √3 की वैल्यू पुट करनी हो तो उस तो बाद साडा आंसर की आउंदा असीं वो भी एक बार वेख लैंदे हां की बनेगा। सो देखो ये तो हैगा 1.6 साडे को, √3 की वैल्यू 1.73। ठीक है, इत्थे लिख लो √3 इज इक्वल टू 1.73। क्लीयर। सो -1, सो इस माइनस करते जो साडे को आ गया 1.6 ओवर आ गया 0.73। क्लीयर। हुण इस तो बाद असीं जो सॉल्व करांगे तो ये सी साडा 1.6, इहदा ते नीचे साडे को 0.73। सो इहदा पॉइंट खत्म करते हैं तो नीचे साडे को 10 बन जाएगा, इहदा पॉइंट खत्म करते हैं तो साडे को उपर पॉइंट की जगह तो 1, उस तो बाद कितने नंबर ने 1 2, वो साडे को आ गई 2 0 लग गई। ये हो गया कंप्लीट। सो 0 ना 0 कैंसल, साडे को आ गया 16 × 10 ओवर 73। सो ये साडे को आ गया 160 डिवाइड ओवर आ गया साडे को 73। सो हुण इसनूं असीं
डिवाइड करना है। सो 160 डिवाइड करते हैं 73 ना, सो ये साढ़े को 2 टाइम्स आ गया 146, ठीक है 146 आ गया। तो असीं माइनस करते हैं तो साढ़े को आ गया 10 चो 6 4, 5 चो 4 1 1 4, इधर साढ़े को 0 लगेगी, ठीक है, एक जो 0 लाई तो इतने आंसर 'च पॉइंट लग जाएगा। हुण ये देखो साढ़े को आ गया 140, सो जो 140 आ गया तो 73 2 टाइम्स करी तो 146 है साढ़े को, तो ये मतलब कि सिंगल एक बारी जाएगा 73 1 जा 73। साढ़े को 10 चो 3 माइनस करते साढ़े को आ गया 7, सो 13 चो 7 माइनस करते 6, सो 67 आ गया। सो ज़्यादा करने की लोड़ नहीं, असीं 2.1 तक ही वैल्यू रख लेंगे हैं, तो साढ़े को यदा आंसर जो आ जाएगा डिवाइड करके, मतलब कि BC सी जो साढ़े को इस 2.1 मीटर। सो ये जो साढ़ा एक अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर है साढ़ा वो हो जाएगा, ठीक है। इतने राउंड ऑफ करांगे तो असीं 2.2 भी लगा सकते हैं, 2.1 भी ठीक चलेगा साढ़ा, ठीक है। सो इस तरह ध्यान रखना है कि जो साढ़े को इस तरह आंसर बन जाता है, आंसर ये भी सही है, पर जेकर साढ़े को √3 की वैल्यू गिवन दी गई हो तो तुसीं √3 की वैल्यू पुट करनी है। पुट करने तो बाद जो भी आंसर साढ़े को बनता है सॉल्व करने तो बाद, तो वो साढ़ा आंसर जो मन्निया जाएगा। सो इसी साढ़ा क्वेश्चन नंबर 8th। सो नैक्सट क्लास में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। थैंक यू।